Hello friends, Assalamu alaikum. I am Al-Sabah Nadab from Dr. Sadullah Khan English Medium School and Junior College Solapur. Today we are going to study about solid state. It is an important lesson for JEE NEET preparation, also for HSC exam. This lesson is prescribed for your state board syllabus, chapter number 1. So let's get started. So friends, जैसा कि हमको पता है there are three different states of matter, that is solid, liquid and gas. Basically these three states of matters are present. About liquid and gaseous state we have learned in standard 11, and now we are going to focus on solid state in this chapter. So basically we all know that the solid state, what is solid state and what are the characteristics of solid state. That is, solid state means there is strong interparticle force of attraction is present in a solid matter, and as a result of this the solids have definite shape, volume, which change only slightly with change in temperature and pressure. And we all know that the smallest constituent particle of various solids are atoms, ions or molecules. All such smallest particles of solids will be referred to as particles in this chapter. So first of all we will see what are the different types of solid. As you all can see on this screen that there are two types of solid, that is crystalline solids and amorphous solids. So we will study comparatively both the crystalline solids and amorphous solids. So first of all, crystalline solid. Crystalline solids in which the arrangement of constituent particles is regular. The arrangement is regular and very definite arrangement is present and extended in all the directions, are known as crystalline solids. Its examples are NaCl, ice, salt, NaCl, ice, metals, sodium, gold, copper, or there are different types of examples of crystalline solids. Okay, and what is amorphous solids? So amorphous solids, they do not have any regular arrangement और रेगुलर और अगर होगा तो भी रेगुलर अरेंजमेंट किस तरह से होगा, फॉर अ शॉर्ट रेंज. फॉर एग्जांपल ग्लास इज एग्जांपल ऑफ amorphous solid. Amorphous solids are also called as pseudo solids or supercooled liquids because these are not clearly we will does not tell that these are the exact solids. So these possess some properties of solids, and means in this there is not regular arrangement, और उसके अंदर क्या होता है कि जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होता है. सो अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम स्टडी करेंगे कंपेरेटिवली. सो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. सो सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अरेंजमेंट किस तरह से होता है, इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलरिटी होता है और पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. एक पीरियोडिसिटी होती है, रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी होती है इन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट पार्टिकल्स ओवर लॉन्ग रेंज तक, मतलब एक के बाद कंटिन्यू जो है वो क्या होती है, सेम रेगुलरिटी और पीरियोडिसिटी होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, कंस्टिट्यूएंट एटम्स. देन नेक्स्ट, in amorphous solids the constituent particles are randomly arranged. यहाँ पर periodicity होती है, यहाँ पर randomly arranged होते हैं. The particle do not have long range order but
दे डू हैव शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है और इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसमें रैंडमली अरेंज होते हैं और इसमें रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि हमको पता है सॉलिड है तो सॉलिड का हम मेल्टिंग पॉइंट ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक शार्प टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है। बिकॉज क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग इज इक्वल, सभी पार्टिकल्स की जो स्पेसिंग है, स्पेस है, वो इक्वल होती है। तो बॉन्ड्स एक साथ क्या होते हैं, एक सेम टेम्परेचर पर ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ पर कैसा रहता है, जो ये है मेल्ट कब होते हैं वो ओवर अ लॉन्ग रेंज। यहाँ पर इसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। सो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। दे मेल्ट ग्रेजुअली ओवर अ टेम्परेचर इंटरवल। On heating, amorphous solids gradually and continuously soften and starts to flow. यहाँ पर ऐसा डायरेक्टली यहाँ पर ये आराम एक साथ ये मेल्ट होता है, एक पॉइंट आता है वहाँ पर मेल्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बट एमॉर्फस सॉलिड्स एक एग्जैक्ट टेम्परेचर पर नहीं होती है, एक रेंज होती है। वो रेंज के बीच में अगर वहाँ से स्टार्ट हो गया टेम्परेचर तो वो स्टार्ट होता है मेल्ट होना और मेल्ट होकर फ्लो होना स्टार्ट होता है। क्योंकि हमको पता है कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो है यूजुअली दीज आर द, हम इसको सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इसकी स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। सो नेक्स्ट है हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें होती है डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। एक अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ द सॉलिड। मतलब अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सॉलिड है, उसको मेल्ट करने के लिए मुझे जितनी हीट लगती है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या होती है, डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, अगेन द सेम रीजन। और यहाँ पर होते हैं इनडेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन, अगेन again the same reason. Then next compressibility। जैसे कि हमको पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है यूजुअली दीज आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड होते हैं। कोई भी सॉलिड लो आप, उसको आप दबाने की कोशिश करो, एक चीज़ भी बिठाओ तो नहीं होता, क्योंकि इसका एक डेफिनाइट शेप एंड साइज होता है। व्हाइल गैसेस और लिक्विड स्टेट कैसे रहती है, इसको हम कंप्रेसिबल करके एक जगह पर बिठा सकते हैं। जैसे कि अभी समझो एक सिलेंडर है, उसमें मुझे गैस फिलअप करना है तो कर सकते हैं, या फिर एक बकेट है, उसमें मुझे वाटर ऐड करना है तो मैं उसमें बैठ सकता है वो कंप्रेसिबल करके, या फिर गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं करते। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली उसमें रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। जैसे कि अभी आप सॉलिड देख रहे हो तो उसमें कैसा रहता है, समझो 1 kg का आपका डब्बा है तो उसमें 1 kg का ही उतने ही क्रिस्टल्स बैठेंगे। जैसे कि अभी शुगर का एग्जांपल लो, शुगर इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर 1 kg एक डब्बे में 1 kg शुगर बैठती है तो 1 kg ही बैठेंगी, कितना भी करो आप उसको, कितना भी दबाव करो तो भी ज़्यादा शुगर उसमें एक्स्ट्रा बैठेगी क्या, नहीं बैठेगी। सो इट इज़ अ इनकम्प्रेसिबल। और एमॉर्फस सॉलिड्स जो है दीज आर कंप्रेसिबल टू सम एक्सटेंट, मतलब ये भी उतनी तरह से 100% कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिखाते जैसे गैसेस दिखाते हैं। दीज आर सम कंप्रेसिबल थ्रू सम एक्सटेंट, बिकॉज ये जो है इनका जो स्ट्रक्चर सॉफ्ट होता है। और कटिंग एज भी शार्प एज टूल, अगर हम इसको कट करोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तो स्मूथ प्लेन्स आर जनरेटेड। जैसे कि आप आपका सॉल्ट लो या फिर शुगर के पार्टिकल्स लो, शुगर को भी शुगर यूजुअली कैसी रहती है, आपने मोटी शक्कर देखी होगी, खड़ी शक्कर बोलते हैं उसको, और अपनी जो ग्रैन्युलर शुगर देखी होगी, बोथ आर द शुगर्स। मतलब उसको आप कट करके एक शार्प एजेस में कर सकते हैं। जो हमारी अलग अलग टाइप के हम शुगर के अलग अलग क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे तो आप देख सकते हो अलग अलग शेप में भी हम उसको कट कर सकते हैं।
और क्योंकि इसमें अलग अलग प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं। और वहीं पर यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड्स को हम इस एमॉर्फस सॉलिड्स स्मूथ प्लेन्स नहीं होते, इसमें रफ प्लेन्स आर जनरेटेड। जैसे कि आपकी ग्लास को वगैरह कट करना होता है तो यूजुअली देखो वहाँ पर पुश टू भी रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है उसके जो ये एजेस है ये रफ हो जाते हैं और हाथ वगैरह कटने का डर रहता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है that is isotropy and anisotropy. So crystalline solid usually they show these are the anisotropy, but इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि जिसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसको छोड़ के बाकी सब कैसे है एनिसोट्रॉपी। बिकॉज एनिसोट्रॉपी मतलब क्या है, देयर प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शन डिपेंडेंट। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, ये जो है हर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं, चेंज होते हैं। सो एनिसोट्रॉपिक मतलब सिंपल the properties like refractive index, thermal and electrical conductivity are different in different direction, while amorphous solid shows isotropic. Amorphous solid are isotropic, in other words their properties such as refractive index, conductivity and are all independent on डायरेक्शन। सॉरी यहाँ पर आना चाहिए वन मिनट। Their properties are these all are independent of direction of measurement. They exhibit same magnitude for any property in every direction. जैसे यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज के डायरेक्शन बदलते जाओगे तो आपको डिफरेंट डायरेक्शन के इसमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज अलग अलग दिखेंगी यहाँ पर, लेकिन सभी जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है। किसी भी डायरेक्शन में जाओ आपको सेम प्रॉपर्टीज मिलेगी। देन नेक्स्ट सिमेट्री, दे पजेस सिमेट्री, और यहाँ पर इसमें दे डू नॉट पजेस सिमेट्री। इंटरफेशियल एंगल्स, यस इनमें इंटरफेशियल एंगल प्रेजेंट है क्योंकि फेसेस है। अब आप शुगर का क्रिस्टल लो तो मतलब जो स्क्वायर टाइप की जो ग्रैन्युलर शुगर है उसको आप देखो कि स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, तो उसमें डिफरेंट फेजेस प्रेजेंट है, तो फेस के बीच में एंगल्स तो प्रेजेंट ही होंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरफेशियल एंगल। अगेन हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इंटरफेशियल एंगल्स, अल्फा बीटा और गैमा। और इसमें क्योंकि डेफिनाइट इसमें अरेंजमेंट नहीं होती है इंटरमॉलिक्यूलर डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होती है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। सो नेक्स्ट अब हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल्स, जैसे कि आइस है, सॉल्ट है जैसे कि NaCl, मेटल्स सोडियम, गोल्ड, कॉपर, और materials like diamond, graphite, ceramics. These are the examples of crystalline solid. While glass, plastic, rubber, tar and metallic glass, metal, metalloid alloy are few examples of the amorphous solids. So यहाँ पर और एक point है, that is next isomorphism and polymorphism. तो जैसे कि हमने ये स्टैंडर्ड 11th में पढ़ा है, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही जो सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है, इट एग्जिस्ट इन अ 2 or more फॉर्म्स।
तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म or two or more different substances having same crystal structure, इसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन्स सेम और मॉर्फिज्म मीन्स स्ट्रक्चर। मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स डिफरेंट, मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर। मतलब a single substances exist in different phases। like अभी हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़े हैं। कार्बन ही है सेम, लेकिन इसके अलग अलग फेजेस में या फिर अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जैसे कि डायमंड, ग्राफीन, ग्राफाइट, जो भी है, फुलेरिन। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और आइसोमॉर्फिज्म मतलब टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आइसो मीन्स सेम और मॉर्फ मीन्स स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है NaF, MgO। ये दोनों में ये दोनों क्या करते हैं, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर शेयर करते हैं। So this is about the polymorphism and isomorphism. Then next हम देखने वाले अभी classification of crystalline solids. What are the different types of crystalline solid? Okay, so सबसे पहले nature of force among the constituent particle। जो भी constituent particles है solid के, इनके बीच में जो nature of force present है, इसके हिसाब से there are 4 different types of solids। that is first molecular solid, ionic solid, metallic solid और covalent solids। these are the basic 4 types of crystalline solids। so we will see one by one। सबसे पहले molecular solids। ओके, देन सबसे पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड। बेसिकली इसमें जो भी substances like H2, Cl2, HCl, CH4, these are the examples of molecular solids। so इसका constituent particles मेनली क्या होगा, molecules हो गए और अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स। अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स ये हो गए इसका मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंसेस। द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर covalent or different types के। the molecules are held together by various intermolecular force of attraction। तो जो force of attraction हमने स्टैंडर्ड 11th में पढ़े हैं, अगर समझो उसमें वेरी वीक डाइपोल इंट्रैक्शन होगा तो उसका सब टाइप है, हम उसको पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड भी बोलेंगे। उसकी एग्जाम्पल है HCl, इसमें एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि अब यहाँ पर H पर होता है पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, और Cl पर होता है निगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और नेक्स्ट, अगर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वेरी वीक डिस्पर्शन और लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
तो इसको हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज यहाँ पर CCl4, CH4, H2. These solids are also involved in monoatomic solids like argon. नियॉन में भी इस टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है और उसको हम नॉन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. और these are the usually gases at room temperature. ये सभी गैसेस है रूम टेम्परेचर. बट जैसे हम इसको कूल करते हैं तो वो क्या होगा, उसका कन्वर्जन सॉलिड स्टेट में हो जाएगा. देन नेक्स्ट, अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे. और इसका एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा अपना आइस NH3HF. और अब नेक्स्ट, because of these all are the very strong weak forces of attraction, तो इसके लिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है ये लो हो गए, सभी के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं. और these are the insulator और poor electrical conductors and are good insulators. इसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. और पुअर कंडक्टर मीन्स ना के बराबर ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. और यहाँ पर जो है नॉन पोलर और पोलर है, दीज आर, इनका जो फिजिकल नेचर है ये सॉफ्ट होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड हार्ड होते हैं. देन नेक्स्ट है आयोनिक सॉलिड्स. सो भी आयोनिक सॉलिड में बेसिकली इसमें क्या होते हैं, चार्ज आयंस. जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये क्या होते हैं, चार्ज आयंस होते हैं. और इनके बीच में जो भी ये होगा, बॉन्डिंग होगी या फिर फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको हम कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि टू अपोजिटली चार्ज आयंस है. जैसे कि अब यहाँ पर Na+ एंड Cl-, तो इनके बीच में एक क्या होगा, each ion of a given sign of charge is bonded to ion of oppositely charge. इन दोनों में बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जैसे कि Na+ और Cl- में बाय कूलम्ब फोर्स होगा. और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. यूजुअली दीज आर द हार्ड एंड ब्रिटल एंड दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. और ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बट जैसे कि हम इसको मेल्ट करो या फिर इसको हम वाटर में डिजॉल्व करोगे, एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देन नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल है NaCl, K2SO4, CaF, NgO, ZnS, CaF2, KCl. देन नेक्स्ट है थर्ड टाइप है, दैट इज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स. तो यूजुअली इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम, और इसमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो होती है कोवेलेंट बॉन्ड्स. द एटम्स इन दिस क्रिस्टल्स आर लिंक्ड बाय कंस्टिट्यूएंट सिस्टम ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. इसमें इसके लिए, इसकी वजह से इसको क्या मिलता है, स्ट्रक्चर रिजिड 3-डायमेंशनल नेटवर्क दैट फॉर्म्स अ जाइंट मॉलिक्यूल्स. जैसे कि अभी हमने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ग्राफीन का स्ट्रक्चर पढ़ा है. और ये वाले जो है बहुत ही हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, वेरी हार्ड और मोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल होते हैं. हम इसको कॉम्प्रेस ही नहीं कर सकते. इसके हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. और नेक्स्ट ये जो है, दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट एक इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, ये ग्राफाइट एक्सेप्शन है, इसको नोट कर लो. ग्राफाइट यूजुअली इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, बट ये जो है
इसका फिजिकल नेचर सॉफ्ट होता है और इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट, ओके, मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में क्या है, दीज सॉलिड्स आर फॉर्म बाय सम मेटेलिक एलिमेंट्स हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। अब यूजुअली इसमें क्या, मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इन अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized over the entire crystal, leaving behind positively metal ions. Therefore, metallic crystals are often described as an array of positive ions immersed in a sea of mobile electron. मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो भी मेटल्स है, यूजुअली मेटेलिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होगा मेटल में और इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो जो भी मेटल्स है, मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये यूजुअली कैसे रहते हैं, जो भी है डीलोकलाइज्ड रहते हैं पूरे क्रिस्टल्स में। और वो डीलोकलाइज्ड जो ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उनके बीच में पॉजिटिव आयंस होते हैं। यूजुअली मेटल्स हमको मालूम है पॉजिटिव आयंस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये पॉजिटिवली आयंस होते हैं। सो यूजुअली ये किस तरह से दिखता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अभी ये पॉजिटिव आयन है, इसके अतराफ में एक सी की तरह, मतलब बहुत से वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नो डाउट एक शेप होगा और इन दोनों के बीच में मीन्स अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव आयन एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है ये मेटल्स में प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, इस तरह से हार्ड और फिजिकल नेचर ये हार्ड होते हैं और मेलिएबल और डक्टाइल। जैसे कि हमको मालूम है मेटल्स की प्रॉपर्टी है दीज आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, मीन्स इसके हम क्या कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं और वायर बना सकते हैं। और इट इज़ अ गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। इसके लिए हम मेटल्स के जो यूटेंसिल्स है यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, और इलेक्ट्रिकल जो वायर्स है हमारे उसके बीच में उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होती है वो मेटल्स की वायर्स होती है। यूजुअली कॉपर को यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है, वेरी वेरी हाई। देन नेक्स्ट, अभी हम देखने वाले हैं बेसिकली, अभी दीज आर द ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉलिड। सो अभी हम देखने जा रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। अब सॉलिड देखा है हमने, बट अभी देखने जा रहे हैं हम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो लैटिस इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। अभी हमको पता है कि क्रिस्टल मतलब कैसा है, क्रिस्टल्स में रेगुलर अरेंजमेंट होता है और बिल्डिंग ब्लॉक्स। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो बेसिक पार्ट है, मतलब किस तरह से उसका जो अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट है, ये वाले अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। सो अभी क्रिस्टल लैटिस में usually crystallite the smallest part of lattice which can be repeated in all direction to generate the entire lattice is called as unit cell. अब यूनिट सेल क्या है, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैटिस। लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जो बार बार रिपीट होगा और इससे क्या मिलेगा, एंटायर लैटिस बनेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर एक यूनिट सेल है, इसको अगर हम यहाँ पर बाजू में रखो, इसके साइड में रखो, इसके ये साइड में रखो, इसको यहाँ पर ऊपर रखो, इसको यहाँ पर नीचे, फिर आगे पीछे, तो इससे क्या होता है, जो भी स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। जैसे कि अभी समझो एग्जाम्पल लो, आपके घर की वॉल है, दीवार है, यूजुअली किससे बनती है, मिलकर
ब्रिक से बनती है या इसको हम बोलेंगे ईंट से मिलकर बनती है। तो ईंट जो भी है, ईंट को आप एक के ऊपर एक रखते हो, साइड में रखते हो, आगे पीछे, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो बेसिकली जो भी आपका जो वॉल ऑफ द हाउस है उसको हम लैटिस बोलेंगे, और जो ईंट है उसको हम यूनिट सेल बोलेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टल लैटिस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूनिट सेल के 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में यूजुअली जो है 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। एज पैरामीटर, ए बी सी, इंटरफेशियल एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा, और लोकेशन ऑफ एटम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो यूनिट सेल के टाइप्स है ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस हम अब यहाँ पर हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्रिस्टल लैटिस के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स बनते हैं। ये जो 2 है, फर्स्ट और सेकेंड, ये एज पैरामीटर और इंटरफेशियल एंगल, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये ए बी सी, दिस इज द डायरेक्शन यूजुअली, मीन्स इसकी हाइट, विड्थ, ये जो है यूनिट सेल की, इसको हम पैरामीटर्स बोलेंगे ए बी सी। और इनके बीच में जो भी एंगल्स हो गए, इंटरफेशियल एंगल, देखो ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये एक फेस है, इनके बीच में जो भी एंगल है इसको हम बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरफेशियल एंगल, दैट इज अल्फा बीटा एंड गैमा। जैसे कि अभी फेस यहाँ पर बी और सी के बीच में जो एंगल है उसको हम अल्फा बोलेंगे, सी और ए के बीच का एंगल को बीटा बोलेंगे, ए और बी के बीच के एंगल को हम अल्फा बोलेंगे। और ये वाले जो 2 पैरामीटर है, एज पैरामीटर और इंटरफेशियल एंगल्स को अगर हमने चेंज करते हैं, इसमें हम इसको चेंज करते हैं तो इसके हिसाब से हम जो क्रिस्टल लैटिस के हमको डिफरेंट क्या बोलेंगे 7 यूनिट सेल टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स मिलेंगे। इसको ही हम क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें किस तरह से होंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल वो हम देखेंगे यहाँ पर। सो सबसे फर्स्ट जो है यूनिट सेल क्रिस्टल सिस्टम, इसका फर्स्ट सेल है क्यूबिक। तो इसमें एज लेंथ क्या होती है, ए बी एंड सी इक्वल होती है, और अल्फा बीटा गैमा ये होता है 90 डिग्री। यूजुअली क्यूबिक जो स्ट्रक्चर है इसमें बस इतना याद रखना है आपको, एज लेंथ होती है ए बी सी इक्वल होती है, और अल्फा बीटा और गैमा ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पर आप डायग्राम्स में देख सकते हो। बट अब टेट्रागोनल नेक्स्ट सेकेंड सिस्टम, इसमें ए बी इक्वल होती है बट सी इज नॉट इक्वल, और अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री। जो एंगल्स है 90 डिग्री के होते हैं, बट जो है ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है ए और बी के। इसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, आप कंपेयर करके देख सकते हो क्यूबिक और टेट्रागोनल में। देन नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भी साइड इक्वल नहीं होती है, ए बी सी तीनों भी इक्वल नहीं होती है, बट एंगल्स उनके बीच के होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। देन नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम ट्राइगोनल और रोम्बोहेड्रल। उसमें क्या होता है, ए बी एंड सी इक्वल होता है, अल्फा बीटा गैमा बट 90 डिग्री नहीं होता है। यहाँ पर तीनों लेंथ सेम होती है, लेकिन अल्फा बीटा गैमा जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं होता है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों पैरामीटर्स को वेरी कर रहे हैं और आपको नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम मिल रही है। अब नेक्स्ट हेक्सागोनल में हमने क्या किया, ए बी इक्वल रखा और सी डिफरेंट है। समझो ए और बी इक्वल है और सी वाला जो है ये डिफरेंट है एज लेंथ, और इसमें जो इंटरफेशियल एंगल है अल्फा और बीटा ये 90 डिग्री होती है। जैसे कि ये वाला अल्फा और ये बीटा 90 डिग्री होती है, और गैमा जो है गैमा होता है इसके अंदर
120 डिग्री, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 120 डिग्री। देन नेक्स्ट मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में है एज लेंथ कोई भी इक्वल नहीं होती है, ए बी सी तीनों भी डिफरेंट होती है, और अल्फा और गैमा 90 डिग्री होते हैं, और बीटा यहाँ पर क्या होता है, अल्फा और गैमा 90 डिग्री होते हैं और बीटा 90 डिग्री नहीं होता। और नेक्स्ट ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में यूजुअली तीनों लेंथ भी डिफरेंट होते हैं और एंगल भी 90 डिग्री नहीं होते। इस हिसाब से देर आर 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स। तो सबसे पहला है क्यूबिक। तो किस तरह से याद रखोगे आप, CTO, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। इसमें हमने क्या किया है, इंटरफेशियल एंगल सब में अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, बट एज लेंथ हमने चेंज किया है। जैसे कि क्यूबिक में तीनों इक्वल, टेट्रागोनल में C इज नॉट इक्वल, और यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भी एज लेंथ इक्वल नहीं होते। इस तरह से याद रखो। और टेट्रा, अब नेक्स्ट यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। अब टेट्रागोनल में क्या है, तीनों एज लेंथ सेम है, और अल्फा बीटा और गैमा। यहाँ पर हमने क्या किया, एज लेंथ को सेम रखा, इंटरफेशियल एंगल जो है ये चेंज हो गए, इट इज़ नॉट इक्वल टू 90। इट मे बी डिफरेंट, 90 नहीं होगा बट 90 के अलग होता है, 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, या फिर अबाव 90, 100 डिग्री ऐसे होगा, लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। नेक्स्ट हेक्सागोनल में ए बी इक्वल है और सी डिफरेंट है, और यहाँ पर अल्फा बीटा 90 होता है और गैमा 120 डिग्री। इसको एक याद रखना पड़ेगा आपको। देन नेक्स्ट मोनोक्लिनिक में ए बी और सी तीनों भी इक्वल नहीं होते हैं, बट एंगल जो है अल्फा और गैमा इज इक्वल टू, अल्फा और गैमा इज इक्वल टू 90 होता है, और बीटा डिफरेंट। और ट्राइक्लिनिक तो डिफरेंट ही है, आपको याद है, याद ही हो सकता है इजीली कि एज लेंथ डिफरेंट होते हैं और इंटरफेशियल एंगल है इनका 90 डिग्री नहीं। सो टोटली देर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स जो अभी हमने देखा, और उसके 4 सब टाइप्स है। मीन्स हर एक यूनिट सेल के बेसिक 4 टाइप्स है, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, और उसके हर एक क्रिस्टल सिस्टम के पॉसिबल 4 टाइप्स है, सब टाइप्स है। इन इज इक्वल टू 28 पॉसिबल वेरिएशंस होते हैं, बट only half of these are found to exist। मीन्स इसमें पूरे 28 एग्जिस्ट नहीं करते, बेसिकली हाफ 14 ही एग्जिस्ट करते हैं, और दिस 14 लैटिसेस आर कॉल्ड ब्रेवियस लैटिसेस, इसको हम बोलते हैं, और इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।